Welcome back, friends. Welcome to another video lecture. Today we will discuss post Mendelian genetics. So far we have discussed, pre-Mendelian genetics, pre-Mendelism, Mendelism, and post. Now, today we will discuss post Mendelian genetics. Post Mendelian genetics. Post Mendelian genetics, which is also called as post Mendelism. Okay, आपको पता है कि the Mendel's work, what he worked, what principles, what generalizations he gave, these were rediscovered in 1900 by many scientists like Hugo de Varies, right? Carl Cornelius, right? And Suchermorg, right? These were scientists who rediscovered Mendelian work. And during this period, since the rediscovery of Mendelian work, cases have been reported, कुछ cases सामने आए हैं, cases have been reported which give additional information about the pattern of inheritance. After the rediscovery of Mendelian, work in 1900 by these scientists, some cases have been reported which give additional information about the pattern of inheritance. These cases which have been reported, these cases explain some modifications. These cases explain some modifications in Mendelian genetics. These cases explain the pattern of inheritance, which are deviating from Mendelian inheritance, right? Hence, these are known as deviations of Mendelism. They differ from the Mendel's genetics, right? Examples of these deviations from Mendelism, right? Examples of post-Mendelian, genetics. Examples of post-Mendelism are, number one, incomplete dominance. This is one example. Incomplete dominance. Number two, codominance. Right? Number three, multiple allelism. Number four, pleiotropy. These are some cases which have shown deviation from Mendelism. What are these? These are incomplete dominance, codominance, multiple allelism, and pleiotropy. Now, let us discuss these one by one. Come to the first one, incomplete dominance. Right? Incomplete dominance. Okay. Let me define incomplete dominance. Incomplete dominance
is a type of inheritance. Is a type of inheritance in which one allele for a specific character is not completely dominant, over the other allele of that character, or the other allele of that character. Right? This is incomplete dominance. Incomplete dominance is a type of inheritance in which one allele for a specific character is not completely dominant. It is dominant, but it is incompletely dominant. It's not completely dominant over the other allele of that character. Okay? Hence, this type of inheritance, incomplete dominance. Hence, this type of inheritance produces phenotypes which are different from both the parents. इसमें ऐसे फिनोटाइप्स बनते हैं ऑफस्प्रिंग्स के जो फिनोटाइप्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, राइट? हेंस this type of inheritance, I mean incomplete dominance, produces phenotypes which are different from both parents. And this type of inheritance, incomplete dominance की बात करता हूं, is also called as intermediate inheritance. Intermediate inheritance. Right? Intermediate inheritance. This is incomplete dominance. First, आपको डेफिनेशन समझनी है, देन एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स. पहले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच वन एलील फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. राइट? सपोज दिस इज अ हाइट कैरेक्टर, इट्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. ओके, it has two alleles, right? One is tall, capital T, and another is small, T. Okay, one is tall and this is dwarf. This is dominant, this is recessive. In F1 generation, in Mendelian inheritance, as per Mendelism, this tall was usually dominant over, dwarf in F1 generation. This was known as dominance, right? Now we are today, discussing incomplete dominance. As per the definition, it seems that if T is a tall plant, right, it is crossed with a dwarf plant, small t, right? In F1 generation, the F1 hybrid, if it is T and T, here this T is not dominant over this small t completely. It has incomplete dominance over the T, right? This is post-Mendelian genetics. This is deviation from Mendelism. Otherwise, Mendel ने हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था. लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपल था. हम लोग दो प्लांट्स को, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करते थे. F1 जनरेशन में जो F1 इंडिविजुअल्स बनते थे ना, वो टॉल होते थे, क्योंकि ये जो टॉलनेस का जीन होता था, एलील होता था, ये कंप्लीटली डोमिनेट होता था रिसेसिव जीन पे. इसको मेंडलियन डोमिनेंस कहते हैं. फिर आफ्टर मेंडल फिर डिविएशंस हो गई मेंडलिज्म की, कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस हो गई. कुछ ऐसी एग्जांपल सामने आई जिनमें मेंडल के ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ट्रू प्रूव नहीं करता था. वैसी एक एग्जांपल है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं,
राइट? F1 इंडिविजुअल में ये जो प्लांट बनता है उसमें एक एलील कैरेक्टर का यानी कि टॉलनेस का ये कंप्लीटली डोमिनेट डॉर्फस एलील यानी कि स्मॉल टी पर नहीं होता है. कंप्लीटली it is incompletely dominant on the other allele of that character. This is known as incomplete dominance. Right? Now let's explain this incomplete dominance in detail. Now, Mendelism. According to Mendelism, right? This is Mendelism, and this is post-Mendelism. Mendel के बाद. Example. This is, let me quote an post-Mendelism example, and this is Mendelism example. Here. This is the Mendelian example. T, tall plant, law of dominance. Okay, we will cross it with a dwarf plant, right? F1 individual will be like this. Okay. In F1 individual, the allele which expresses itself, this allele expresses itself. This is known as dominant allele, right? This allele which is not able to express itself, this is known as recessive allele. This dominant allele is dominant over the recessive allele. This is known as law of dominance. Completely dominant. Why? Come to this one. Just for an example, I'm explaining you. Tall and tall, right? If this F1 individual is capital T, small t, but if this tall is not dominant completely over T, if this F1 hybrid will be, neither it will be tall nor it will be dwarf, right? It will be somewhat intermediate between the two. We call this example as incomplete dominance. यहाँ पे F1 इंडिविजुअल जो था, it was resembling with dominant parent, right? यहाँ पे F1 इंडिविजुअल जो है, ये intermediate है. It neither resembles this parent or this parent. It is different from both the parents, right? And it is somewhat intermediate. Neither it is tall nor it is short, right? It is somewhat intermediate. This is known as incomplete dominance. So I define incomplete dominance as a type of inheritance in which one allele for a specific character is not completely dominant over the other allele. That means it dominates, but not completely. It dominates incompletely. What happens? As a result, the F1 individual, the offspring which is formed, it is different from both parents, tall and dwarf, right? This is incomplete dominance. If I will, I give you an example. In comparison to the Mendelian, dominance, law of dominance. This is dominance, this is incomplete dominance. क्यों? ये dominance इसलिए है, F1 hybrid में ये जो एक एलील था टॉलनेस का, कैरेक्टर का, हाइट का, ये डॉर्फस एलील पे डोमिनेंट था. ये इसको एक्सप्रेस होने नहीं देता था, कंप्लीटली डोमिनेंट था. यही वजह है कि ये जो F1 इंडिविजुअल था ये अपने एक पेरेंट के साथ मिलता था फिनोटाइप में. ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, राइट? बट यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब हमने इस टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया, तो फिर हमारा जो F1 इंडिविजुअल आ गया, वो F1 इंडिविजुअल में जो एलील था कैपिटल T, it was incompletely dominant. It was not completely dominant on the recessive allele. As a result, what happened? An individual was formed which was neither like tall parent nor like dwarf parent, right? It was intermediate. Hence, we call this example as incomplete dominance and we call this example as dominance. ठीक है ना?
dominance and incomplete dominance, right? Now, this is incomplete dominance, okay? I hope that you may have got something about it. Now, incomplete dominance can be understood by a few good examples. Number one example is incomplete dominance has been witnessed in, Snapdragon. Right? Is a plant. Its another name is dog flower. And its scientific name is Antirrhinum majus. Majus and majus, MAGUS. Right? इसके दो नाम है, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एंटेरिनम मैटस. इसमें आपको ये मिलेगा एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. या आपको मिराबिलस जलापा, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलस जलापा. These two plants provide a good example, of incomplete dominance. Mirabilis jalapa, Antirrhinum majus. These are two plants. This is known as 4 o'clock plant, and this Antirrhinum majus, it has two names, snapdragon and dog flower. Right? Let us see. And you must, remember that Carl Corens discovered incomplete dominance in Mirabilis jalapa, 4 o'clock plant में Carl Corens ने, right, डिस्कवर किया इन 1903. किसने किया? कार्ल कोरेन्स ने. किस प्लांट में? 4 o'clock प्लांट में. 4 o'clock प्लांट का दूसरा नाम क्या है? मिराबिलस जलापा. ठीक है, कब किया? 1903. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? आपको स्नैपड्रैगन में भी मिलेगा. स्नैपड्रैगन का कॉमन नेम और है, दैट इज डॉग फ्लावर, और बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम एंटेरिनम मैजस. ओके, लेट अस सी दिस 4 o'clock plant. It has 3 types of plants. You can see there are 3 types of plants in this 4 o'clock plant. There are some plants with red flowers. Okay? There are some plants of this 4 o'clock plant with white flowers. Right? There are some plants of this Mirabilis jalapa plant which have pink flowers. Okay? Pink flowers. Right. So, 3 किस्म के प्लांट्स Mirabilis jalapa 4 o'clock plant में है. एक ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स का कलर रेड है, एक ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स का कलर व्हाइट है, एक ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स का कलर व्हाइट है, पिंक है. पिंक. राइट? नाउ लेट अस सी. व्हेन वी क्रॉस, अगर हम क्रॉस करते हैं अ ट्रू ब्रीडिंग रेड प्लांट ऑफ मिराबिलस जलापा 4 o'clock प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग, आपको पता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. अगर हम रेड प्लांट मिराबिलस जलापा के ऐसे प्लांट को जिसके फ्लावर्स रेड है, अगर हम इसको क्रॉस करेंगे विद व्हाइट प्लांट, व्हाट डज दैट मीन? व्हाइट प्लांट, अ प्लांट व्हिच हैज व्हाइट फ्लावर्स. राइट? ओके, नॉर्मल. लेट अस रेड डबल आर. हम इसको क्रॉस करेंगे, किसके साथ करेंगे क्रॉस? व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ. True breeding white flower plant. Okay, we can write RR. In Mendelism, we used to write, अगर यहां पे कैपिटल R था, राइट, तो हम लोग ऐसे दूसरे प्लांट जो रिसेसिव प्लांट होता था उसके लिए हम स्मॉल r, यहां पे हम स्मॉल r भी इस्तेमाल कर सकते हैं. या आप तो चूंकि ये क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म है ही नहीं, ये पोस्ट मेंडलिज्म है. ये मेंडलिज्म के डोमिनेंस लॉ का क्या बोलते हैं, डिविएशन है, एक्सेप्शन है. राइट? एक्सेप्शन. राइट? एग्जैक्टली. तो यू कैन राइट बोथ. यू कैन आइदर राइट स्मॉल r और यू कैन आइदर राइट WW, क्योंकि इस पे अब हमारे पास बाइंडिंग नहीं है. हम लोग मेंडल की बात अभी नहीं करते हैं, हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस करते हैं. हम लोग
समथिंग वो चीज डिस्कस करते हैं जो मेंडल के रूल्स के खिलाफ जाता है, एक्सेप्शन में जाता है, राइट। तो हमने एक ऐसे मिराबिलस जिलाफा प्लांट जिसके फ्लावर्स रेड कलर के थे, हमने इनको क्रॉस किया एक ऐसे मिराबिलस जिलाफा प्लांट जिसके फ्लावर्स व्हाइट थे, हमने इनको क्रॉस किया। जैसे हम लोग यहाँ पे मेंडल में टाल प्लांट को डॉट प्लांट के साथ क्रॉस करते थे, सिंपल एज दैट, राइट। तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेंगे, गैमीट्स, ओके। यहाँ पे मिलेंगे गैमीट्स, यहाँ पे मिलेंगे गैमीट्स, राइट, ठीक है। तो F1 जनरेशन हासिल करने के लिए हम इन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन करेंगे, राइट। तो फर्टिलाइजेशन समझने के लिए कुछ बच्चों को यहाँ पे और एक बार मैं प्यूरिट स्क्वायर की बात करूंगा, राइट। यहां देखिए प्यूरिट स्क्वायर में आप लोग यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, ओके। लेट अस गो फॉर दिस वन, आर, ये मेल प्लांट, यहाँ पे आर, ये प्यूरिट स्क्वायर। नाउ सी आर, ठीक है ना। यही यहां पे भी होता था, अल्टीमेटली फिर ये होता था। तो मेंडल में जो F1 इंडिविजुअल्स थे तो वो टाल होते थे, लेकिन यहां पे आप देख लीजिए, आप यही प्यूरिट स्क्वायर के बदले में मैं इन शॉर्ट ऐसे लिखूंगा, F1 इंडिविजुअल आर, दिस इज F1 इंडिविजुअल, राइट। This F1 individual, it was not red. Normally ये रेड होना चाहिए था, यहाँ पे टाल है, टाल को जब डॉप के साथ क्रॉस किया ना, F1 इंडिविजुअल टाल आया, यहाँ पे रेड है, राइट। रेड को जब व्हाइट के साथ क्रॉस किया, यहाँ पे भी टॉल आना था। अगर ये मेंडलिज्म होता, अगर ये मेंडलियन इनहेरिटेंस होता, बट दिस इज डिविएशन, दिस इज पोस्ट मेंडलिज्म, इसको डिस्कवर किया गया, राइट। दिस वन it was not, it was pink, it was pink। तो ऐसी चीज को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ये आर जो है, it was not completely dominant on this R। As a result एक ऐसा F1 हाइब्रिड हमको मिला, that was pink, it was neither red नॉर व्हाइट। यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अभी बोले कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच वन allele of a specific trait, one allele for a specific character is incompletely dominant or is not completely dominant over the other allele. As a result, the offspring formed, the F1 hybrid formed, has a phenotype which is totally different from its both parents. Whereas here, this offspring in Mendelism, in Mendel's law of dominance, F1 hybrid, आपको पता है रिजेंबल करता था डोमिनेंट पेरेंट के साथ। This is incomplete dominance, right? Now, come to the next step. Now, we now know, हमको अब पता है कि ये जो हमारा F1 हाइब्रिड है, नाइदर ये रेड है ना ये व्हाइट है, दिस इज पिंक। पिंक इसलिए है कि ये जो R था, इट वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेट ओवर दिस R, स्मॉल R, ओके। नाउ यहां पे फिर हम करते थे सेल्फ पॉलिनेशन। यहां भी हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पता है हमको मिलेंगे ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन करते थे ना, हाँ, इसको आप सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमको इस प्लांट के मिलेंगे अब F2 जनरेशन, क्योंकि हमने अब F2 जनरेशन रेज कर दी है। यहां देखिए ये गैमीट हो गया, राइट, एक, और ये गैमीट हो गया। यहां पे देखिए ये गैमीट हो गया और ये गैमीट हो गया। आप देखिए कैसे इनको फर्टिलाइज करते, आर 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 आर। यहां देखिए ये आर आर, यहां पे रेड हो गया, आर आर, दिस इज रेड, ओके। ये आर आर और ये आर आर, यहां पे आर आर, ये दो है, आर आर, ये दो है ना, ये क्या है, पिंक,
राइट, और ये RR ये क्या है, दिस इज वाइट। ओके, तो यहां पे F2 जनरेशन का जो हमारा, आपको पता है, दिस वॉज 1:2:1, 1:2:1, राइट। तो यहां पे भी हमको 1:2:1, राइट। F2 जनरेशन आप देखिए, इसका F1 जनरेशन का इसका क्या था, 3:1, 3:, यहां पे 3:1 हमको मिला था F2 जनरेशन का। यहां पे दोनों किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 है, 1:2:1, राइट। कैसे, अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, इसमें दोनों जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो सेम है। कभी कभी एमसीक्यू में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो इन डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए यहां पे डोमिनेंस में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 है। अगर मैं जीनोटिपिक रेशो की बात करूंगा, 1:2, 1 है यूरोरेड, 2 दूसरे है यूरोपिक, 1 तीसरा है यूरो व्हाइट। दिस इज 1:2, दिस इज जीरो टाइप। RR, ये R, कैपिटल R, स्मॉल r, ये हमारे पास 2 है, स्मॉल r, ये हमारे पास 1 है ना। दिस इज 1:2:1, राइट। आप देखिए फिनोटाइप, फिनोटाइप में भी 1 है हमारे पास रेड, 2 है हमारे पास पिंक और 1 है हमारे पास व्हाइट। तो लिहाजा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको अगर मैं बता दूं, ये जो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो ये सेम होता है। क्या है ये, 1:2:1। ये किसमें है, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेट्स कम टू दिस वन, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने। यहां पे हमारे पास ये सिचुएशन, ठीक है। टॉल प्लांट को हमने टॉल प्लांट के साथ, डॉल प्लांट के साथ क्रॉस किया था, राइट। यहां पे हमारा आ गया T, एक यूरोगैमिट यहां पे आ गया, यहां पे हमारे पास एक गैमिट आ गया, ये गैमिट आ गया। बनाइए बेटा, ये क्या नाम है इसका, प्यूरिट स्क्वायर। देखिए प्यूरिट स्क्वायर ऐसे बनता है, राइट। यहां पे ये मेल फीमेल, राइट, राइट। यहां पे T और T, यहां पे T और T, देखिए कैसे, T एंड दिस T। ये यहां पे हमारे पास F1 जनरेशन में, ठीक है ना, यहां पे 4:0। आप देखिए F2 जनरेशन, हमारे पास F2 जनरेशन ऐसे, ये F1 इंडिविजुअल है। आप इसको सेल्फ पॉलिनेट करिए, यहां देखिए ये इसका बन जाएगा क्या बोलते हैं, गैमिट, इसका बन गया ये, राइट। आप देखिए T, ओके। आप देखिए यहां पे T, 3:1 हमारा यहां पे 3:1 जीनोटिपिक रेशो है, सॉरी फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक। 3 टॉल है, 1, 2 और 3, एक डॉर्क है, फिनोटाइप। एंड जीनोटिपिक रेशो क्या है, देखिए इसमें से हमारे पास 1 एक प्योर टॉल है, 2 ये 2 जो है ये हाइब्रिड टॉल है और 1 हमारे पास जो है ये डॉर्क है। तो लिहाजा डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से सेम है, ठीक है ना। जबकि जीनोटिपिक रेशो 3:1 इसमें है डोमिनेंस में, और इसमें क्या है 1:2:1, सिंपल, राइट। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जब हमको कंपेयर करना होता है
मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो, वी कैन जस्ट मेक इट सिंपल। हम इसको सिंपल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की, वहां पे फिनोटिपिक रेशो, फिनोटाइप की बात 3:1 है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1। अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करेंगे मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में, देन 1:2:1। अगर फिनोटिपिक रेशो की बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तब वहां पे भी 1:2:1। राइट? सिंपल। अब लेट्स कम हाउ दिस हैपन, कैसे ये है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। हमारे पास आप एक एंटीहिडम और फोरोक्लाक प्लांट, ये रेड था, रेड, ओके, रेड प्लांट था। रेड इसलिए कि इसके फ्लावर्स का कलर रेड था। हमने इसको एक ऐसे प्लांट जो व्हाइट प्लांट था, व्हाइट इसलिए कि इसके फ्लावर्स का कलर व्हाइट था। राइट? आप क्योंकि आप ये मेंडलियन नहीं है, आप WW भी देख सकते हैं। राइट? तो फिर यहाँ पे F1 इंडिविजुअल में यूनिट स्क्वायर गैमेट्स वगैरह बनाने के बाद हमको मिला RR, F1 इंडिविजुअल, कैपिटल R स्मॉल r। ये कैपिटल R और स्मॉल r वाला जो इंडिविजुअल F1 हाइब्रिड था, दिस इज F1 हाइब्रिड। इसका कलर क्या था बेटा? दिस वॉज पिंक। अब ये देखते हैं कि क्यों हुआ, व्हाट कुड बी द रीजन, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्यों यहाँ पे मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह ऐसा क्यों नहीं यहाँ पे रेड? नॉर्मली तो हम एक्सपेक्ट करते थे ये यहाँ पे रेड बनेगा, ठीक है ना, ये रेड होगा, ऑनिवेज ऐसे भी रेड बनेगा, ये रेड बनेगा, ठीक है ना, हाइब्रिड रेड। अब तो ये रेड है ही नहीं, ये तो पिंक है। क्या रीजन है वो मैं आपको समझा रहा हूं। राइट? देखिए कैसे, हमारे पास रेड है, राइट, ये प्लांट है रेड। ये रेड इसलिए है क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट बनाता है। इस प्लांट का फ्लावर रेड इसलिए है क्योंकि एक पिगमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट की बात करता हूं, एक आधा पिगमेंट बनाता है, बनाया कि नहीं? राइट? दूसरा आधा पिगमेंट बनाता है। राइट? तो ये आधा और ये टोटल पिगमेंट कितना बनाया? एक पिगमेंट, दैट मीन्स कंप्लीट पिगमेंट। राइट? अब यहां पे R पिगमेंट है, एक ही R आ गया, इसमें कितना हो गया? आधा पिगमेंट। ठीक है, गैमीट है ना, मियां से सुई ना, राइट, आधा पिगमेंट। अब R देखिए ये रेड, ये कोई दो पिगमेंट, ये पिगमेंट कोई बनाता ही नहीं, ये कोई पिगमेंट बनाता नहीं। राइट? यही वजह है अब हमारे पास एक रेड है, आधा पिगमेंट रेड, ठीक है ना। तो ये मिल गया है व्हाइट के साथ। तो व्हाइट के साथ जब ये मिल जाता है तो ये लाइट कलर बनाता है, राइट, लाइट कलर मीन्स व्हाट? पिंक। दिस इज पिंक। इट्स द रीजन हाउ इट हैपेंस। ये कैसे होता है एक बार फिर आपको मैं बता दूं। हमारे पास मेरा बिलस जलापा के जो प्लांट्स हैं जिनका फ्लावर कलर रेड है, उनमें 2 R's हैं, कैपिटल R, राइट। एक R आधा पिगमेंट बनाता है, राइट, दूसरा आधा पिगमेंट बनाता है। दोनों R's को मिला के हमारे पास एक पिगमेंट बन जाता है, कंप्लीट पिगमेंट, 100% पिगमेंट। फिर जब इसी R को हम व्हाइट के साथ इसी प्लांट को जब हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं व्हाइट प्लांट के साथ, राइट, F1 इंडिविजुअल में एक R आता है। एक R इज इक्वल टू मैथमेटिकली हाफ पिगमेंट। जब ये व्हाइट का R स्मॉल R आ जाता है, ठीक है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, ये आधा पिगमेंट R के साथ मिलता है, व्हाइट कलर के साथ मिलता है, ये लाइट कलर बनाता है। लाइट कलर इट इज इक्वल टू पिंक बिकॉज R डजंट प्रोड्यूस एनी पिगमेंट। दिस द रीजन हाउ इट हैपेंस। ऐसे हो जाता है। ये वजह है कि क्यों यहां पे पिंक प्लांट्स बने। This is known as incomplete dominance. I will tell you once again, incomplete dominance is a type of dominance in which one allele of a specific trait, here this is
स्पेसिफिक ट्रेट कलर, इसका वन एलील जो है इज incompletely dominant, is not completely dominant, I may say in other words, is not completely dominant over the other allele of the gene. As a result, what happens? An offspring is formed, an individual is formed in F1 generation, which is different from both of its parents. This individual is neither red nor it is, white. Okay? It's pink. What's the reason? What could be the possible reason of being it pink? This is because R here in F1 individual is only one. One R is equal to half of the pigment. Then this F1 individual has another R, small r. This is white. It has come from the white parent. White R, small r from white is equal to no pigment. When this half pigment and white pigment come by, what does happen? It happens that a light color is formed. And light color means pink. This is the explanation why in incomplete dominance, in the F1 individual, in the F1 generation, pink colored plant, a plant with pink flowers has been found. This is the reason why. This is the explanation. I may give you some another explanation for it. तो once and for all आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को डाउट्स हो जाता है कि कैसे होता है अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल का था उसमें अगर F1 इंडिविजुअल सर कहते हैं कि वो टाल होगा, डोमिनेंट पेरेंट से मिलेगा, रिजेंबल होगा, तो यहाँ ये कुछ और ही रास्ता बोलता है कि यहाँ पे ये जो F1 इंडिविजुअल होगा तो ये पिंक होगा, किसी भी पेरेंट के साथ नहीं मिलेगा। बेटा इसमें रीजंस होते हैं। I will tell you, there are reasons, there are possible reasons why in incomplete dominance F1 individual was pink, not red, which has been the practice in Mendelism. But we are discussing deviations from Mendelism. We are discussing the exceptions to the law of dominance from, this Mendel's law of dominance. Now, another possible reason. Sorry. Yes. Let's explain. Another possible reason. This is all. This is all. This is a red plant. Red in the sense that this plant has red flower. Okay. This has been crossed with a plant. I'm sorry. This could be written like this. Smaller. This has been, crossed with, a plant which has white flower. जिसके white flowers है, right? तो यहाँ पे this is incomplete dominance. तो dominance का देख लेते हैं. ये एक tall plant है, right? और ये dwarf plant है. इस dominance का result हमारे पास T, capital T, small t. ये tall. इसका रिजल्ट देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पिंक, ये पिंक हो गया। अब मैं रीजन बोलता हूं। देखिए यहां पे अगर हम इस हाइब्रिड की बात करेंगे, ये अलील है टॉल जैसा है ना, कैपिटल टी, राइट। एक अलील को कंट्रोल कौन करता है? जीन, राइट। The alleles are controlled by, these are all genes. Now the concept has totally changed. We used to call these factors, elements. Mendel used to call. Now this is the modern genetics, molecular basis of genetics. We know everything. We know what is meiosis, what are chromosomes, what these genes are. Things have moved very fast. We know everything about. We know every A to Z of these genetics now, right? Now this allele in F1 hybrid of lab dominance, responsible for tallness, it's controlled by a gene. I'm telling you how a gene works. How a gene works. देखिए यहाँ पे हमने रेड प्लांट को व्हाइट प्लांट के साथ क्रॉस किया और F1 इंडिविजुअल हमारा जो आ गया है, दिस इज पिंक, ठीक है ना। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ पे हम लोग लैब डोमिनेंस जो हमने किया था मोनोहाइब्रिड, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्लास में, हमने यहाँ पे ये जो F1 हाइब्रिड है ये टॉल है, राइट।
तो इसमें कैपिटल टी टॉलनेस का पूरा डोमिनेट है डॉर्फनेस के स्मॉल टी पे। यहां पे कैपिटल आर जो है ये स्मॉल आर पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं है। अब ये कैसे हो गया, यहां पे क्यों ये कंप्लीट डोमिनेट है और यहां पे क्यों ये इनकम्प्लीट डोमिनेट है आर स्मॉल आर पे। देखिए एक चीज जो होता है, एक एलील जो है ये टॉलनेस के लिए एलील रेस्पॉन्सिबल है, राइट। ये एलील कैसे काम करता है, इट वर्क्स बाय जीन्स बिकॉज ऑल द एलील्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ठीक है ना। जीन कैन बी, देयर आर 3 possibilities how a gene works. Number 1, either a gene can be normal 100% efficient, or next possibility is that gene can be less efficient, only 50% efficient, or sometimes a gene can not produce enzymes, right. It cannot produce enzymes at all. Are you getting me? मैं आपको बता रहा हूं कि एक एलील को कंट्रोल करता है जीन। जीन कैसे काम करता है, बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, ठीक है। जो ये एंजाइम्स जीन प्रोड्यूस करता है, इन एंजाइम्स के काम करने का तरीका 3 पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं। कुछ एंजाइम्स नॉर्मल एंजाइम्स हैं 100% एफिशिएंट, कुछ एंजाइम्स लेस एफिशिएंट है 50% एफिशिएंट, और कुछ एंजाइम्स काम ही नहीं करते हैं, कुछ जीन्स एंजाइम ही नहीं बनाते हैं। यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मेंडल का, उसमें जो जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर एलील ऑफ टॉलनेस, इट वाज 100% एफिशिएंट, it was normal, hence it was able to suppress the allele for dwarfness completely, while as here in this case the allele are controlled by a gene. The gene produced an enzyme, that enzyme was 50% efficient, it was less efficient. It's the reason why this gene which produced an enzyme which was 50% efficient, it was not 100% efficient, it was not normal, it was not able to suppress small r allele for whiteness completely. It suppresses it incompletely. It's the reason why in case of incomplete dominance, big flowers, plants with big flowers were formed, because the gene which was responsible for all allele or allele produced enzyme which was 50% efficient, and is the reason why this 50% efficient produced by this 50% efficient enzyme produced by gene controlling R, capital R, was not able to suppress small r that was from white parent, allele completely. It's the reason why in F1 generation, in incomplete dominance, big flowers were formed. I hope that you may have got something. Keep learning. Till then, bye. Thank you.